بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ کو قتل کرنے کے اس کے لیے دو انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی صبا بن عبد الاعضیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مورخ ابن بشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنہ کا رواج موجود تھا۔ حمزہ نے جس صبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کی بیٹے حمزہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ صبا بن عبد الاعضیٰ حمزہ کی طرف بڑھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر وار کر رہے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، صبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ نے صبا پر یکے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ کی تلوار صبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ بھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچھی حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی حمزہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ گرے نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ 4 قدم آگے چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ معرکہ یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ معرکہ کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتیں اور انہیں پانی پلاتیں۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا۔ وہ بھی گرا، پرچم کئی بار گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت، مال غنیمت، فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 2 تیر انداز رہ گئے۔
खालिद ने ये मंजर देखा तो ऐसा लगा जैसे ख्वाब देख रहा हो। वो यही चाहता था। वो तीर अंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो इसने इस पहाड़ी एनैन पर हमला कर दिया जहां पर अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके 9 तीर अंदाज रह गए थे। खालिद इन्हें नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन इनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। इसके घुड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीर अंदाज तेज़ी से तीर बरसा रहे थे। अकरमा ने खालिद को एनैन पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वहां ले आया और इसके घोड़े हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमाने थीं। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना ऊपर वालों के लिए मुमकिन ना था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज 10 ब 10 लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिरे। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन जबीर भी शहीद हो गए। वहाँ से खालिद और अकरमा ने अपने अपने घोड़सवारों को उतारा और इस मुकाम पर आ गए जहाँ से मुसलमानों ने लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घुड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थी वो भाग गई थी, लेकिन उमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। इसने जब कुरैश के घुड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो इसे कुरैश का परचम नजर आ गया। इस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सफियान ने इन भागी हुई एम्बर देखा तो इसे अपना परचम लहराता हुआ नजर आ गया। इसने हबल जिंदाबाद और अज़ा जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था। इसके जहन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। उहुद की पहाड़ी उफक से उभरती नजर आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामा खरामा चला जा रहा था। खालिद की जहनी कैफियत कुछ ऐसी होती जाए जैसे से आगे जाने की कोई जल्दी ना हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे से बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी इस पर पूरी तरह वाज़िया नहीं हुई थी। कभी से यूं लगता जैसे एक मकनातीसी कुव्वत है जो इसे आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसे इसके अंदर से उठती हुई एक कुव्वत इसे पीछे धकेल रही है। खालिद इसे एक आवाज़ सुनाई दी जो इसके अंदर से उठती थी, लेकिन इसे हकीकी समझकर इसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहाँ रेत के सिवा कुछ भी ना था, लेकिन आवाज़ आ रही थी। खालिद, क्या ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने इस आवाज़ को पहचान लिया। इसके साथ ही अकरमा की आवाज़ थी। एक ही रोज़ पहले इसे अकरमा कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद खुदा का भेजा हुआ नबी है तो ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने किए को देख जो सूरज गुरूब होने से पहले पहले मोहम्मद को कत्ल करने की कसम खाए हुए हैं। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। इसका जहन फिर 4 बरस पीछे चला गया, जब वह उहद के मार्के में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस किस्म को पूरा करने का अज़म लिए हुए था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गुरूब करने का अज़म लिए हुए था, होने से पहले कत्ल करना है। इसे याद आ रहा था कि मुसलमानों के तीर अंदाजों ने जब एनैन के पहाड़ी छोड़ दी थी तो इसने इस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके 9 तीर अंदाजों को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करते हुए वहां रह गए थे, ख़त्म किया था। मुसलमानों के हाथों से भागे हुए कुरैश फिर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया था। मुसलमान ये मार्का हार चुके थे और ये अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म अदुली का नतीजा था। खालिद और अबू जहल का बेटा करमा फ़न, हरब और ज़रब के माहिर थे। इनके लिए एक मुसलमान को कत्ल करना अब मुश्किल नहीं रहा था। खालिद देख रहा था कि मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए थे। बड़ा हिस्सा अलग था जो अपने कमांडर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट गया था। चंद एक तीरंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये वो सहाबा कराम थे जो कुरैश के हमले की वजह से अफरी तफरी का शिकार नहीं थे। इनकी तादाद 30 थी। इनमें अबू दजाना, साद बिन अबी वकास, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अबू उबैदा, तलहा बिन अब्दुल्ला, मौसब बिन उमैर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इन 14 ख़वातीन में से जो ज़ख्मियों की देखभाल के लिए साथ आई थीं, 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। एक उम्मे अमारा थीं और दूसरी उम्मे ऐमन नाम की एक हबशी खातून थी। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया रह चुकी थीं। बाकी 12 ख़वातीन अभी तक ज़ख्मियों को उठाने और पीछे लाने और इनकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ़ थीं। खालिद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मैदान जंग में ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता था क्योंकि इसकी कमान
घुड़ सवारों का एक जश्न था जिसने इस पूरी तरह अपनी नज़्म और नसक में रखा हुआ था। वो अंधाधुंध हमले का कायल न था। इसका असूल था कि दुश्मन की ऐसी रग पर ज़रब लगाओ कि दूसरी ज़रब से पहले वो घुटने टेक दे। आज 4 बरस बाद जबकि वो तनहा सहरा में जा रहा था, इसके जहन में घुड़ दौड़े रहे थे। इसे तीर कमानों के सन्नाटे सुनाई दे रहे थे। इसके जहन में मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। इसका ख्याल था कि मुसलमान ये जाहिर करने के लिए नारे लगा रहे हैं कि इन्हें मौत का कोई डर नहीं। तंज और नफरत से अब भी इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने इरादा कर लिया था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल करेगा, कैदी कम ही बनाएगा। इसे अभी पता नहीं चल रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। इसने देखा कि अबू सुफियान जो भागते हुए कुरैश को साथ लेकर वापस आ गया था, मुसलमानों की फ़ौज के बड़े हिस्से पर हमलावर हो चुका था और मुसलमान बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों ने इसे अपनी ज़िंदगी का आखिरी मार्का समझकर शुजाअत व बेखौफी के ऐसे मुजाहरे किए कि कसीर तादाद कुरैश परेशान हो गए। ये सूरत हाल देखकर खालिद आग बगोला हो गया। इसने अपने सवारों को मुसलमानों पर हल्ला बोलने का हुक्म दिया। इसने तलवार नियाम में डाल ली और बर्छी हाथ में ले ली। इसने मुसलमानों पर अकब से हमला किया। इसने बर्छी से मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। इसकी बर्छी कब थी मान के जिस्म में दाखिल होती तो वो चिल्ला कर कहता, मैं हूँ अबू सुलेमान। हर बर्छी के वार के साथ इसकी ललकार सुनाई देती थी कि मैं हूँ अबू सुलेमान। आज 4 बरस बाद जब वो मुसलमानों के मरकज़ मदीना की जानिब जा रहा था तो इसे अपनी ही ललकार सुनाई दे रही थी, मैं हूँ अबू सुलेमान। इसे याद नहीं आ रहा था कि इसकी बर्छी कितने मुसलमानों के जिस्मों में उतरी थी। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया था। थोड़ी देर बाद इसे पता चला था कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान से निकल चुके हैं और करमा मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला गया है। हकीकत भी यही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमान ख़त्म हो चुकी थी। मार्के की सूरत हाल ऐसी हो गई कि आप मुसलमानों को असर नो मुनज़्ज़म नहीं कर सकते थे, लेकिन आप अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए मैदान जंग से निकलना भी ना चाहते थे। हालांकि सूरत हाल ऐसी थी कि पसपाई के अलावा कोई चारा न था, लेकिन आप किसी बेहतर पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे हैं और आपके गिरोह पर बड़ा शदीद हमला होगा। आप एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु